Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The course which we are going to start today is Advances in Supply Chain Management. Your instructor is Sayyid Zulfikar Ali Shah. As far as basic qualification is concerned, I am PhD in Management Sciences, and the PhD is from Muhammad Ali Jinnah University. My research was from State University of New York at Oswego. Of course, prior to PhD, I did MS, and prior to MS, of course, Masters. I am also ACMA. And as far as experience is concerned, I have been in the teaching field since 1996, when by my own self appeared in graduation exams. Since then, I have taught a lot of management sciences courses. Supply chain management is one of them. As far as research is concerned, I have more than 50 research publications, and more than 21 international conferences are on my credit. So this is a brief introduction about me. Now, as far as this particular course is concerned, that is supply chain management, this is actually an advancement based course, and this is Advances in Supply Chain Management. The very first chapter, which is an overview, that would be discussed today. लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कि हमारा ओवरऑल रोड मैप क्या होगा, और फिर उसके अलावा कोर्स आउटलाइन क्या होगी, क्या कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे, क्या कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे. This course would be distributed in 4 different parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. As far as very first part is concerned, that would be totally an overview of supply chain management. In part 2 would be the concepts of advanced planning systems. Then part 3 would be implementing advanced planning systems. In part 4 we'll discuss actual APS and case studies. So if we want to see the detailed course structure, that how we'll move on as far as course is concerned, for that we have this course outline. You can see the first lecture, as I already mentioned, that this would be an overview in which we'll discuss definition, importance of supply chain management, origin of supply chain management, important elements of supply chain management, advances in supply chain management. Second lecture would be Advances in Supply Chain Management, an overview. This would be continued, and we'll talk about building blocks separately, which would be customer services, integration, coordination, relating supply chain management to strategy, multiple foundations. Third lecture would be based upon supply chain analysis, in which we'll talk about motivation and goals, process modeling, concepts and tools, and the SCORE model. Lecture 4 would be supply chain analysis. It would be continued, and multiple segments would be discussed in it. Number 5 we'll talk about advances in inventory management, and different inventory management things would be discussed in this lecture. Then your lecture 6 would be types of supply chains. Then lecture 7 would be advanced planning. Chapter 8 would be this advanced planning would be continued. Even in in lecture 9, this advanced planning would be continued. Your lecture 10 would be structure of advanced planning system. In lecture 11, we'll talk about demand planning. Then the next lecture would be master planning. The next lecture would be demand fulfillment and ATP, which would be continued. And in the next lecture, that would be production planning and scheduling. We'll talk about in lecture number 16, purchase and material requirements planning, in which multiple basic and advancement based things would be discussed.
Then in lecture 7, the definition of a supply chain project would be discussed. Then lecture 18 would be definition of a supply chain project. It would be continued. Then in lecture 19, the selection process will be discussed. Then lecture 20 would be implementation process. In lecture number 21, we'll talk about implementation process. That would be continued from the last lecture. Lecture 22 would be architecture of selected APS. Then lecture 23 would be architecture of selected APS. That would be continued. In lecture 24, we'll talk about strategic network design in the chemical industry. Then in lecture 25, we'll talk about demand planning of styrene plastics, in which we'll have a particular case study to discuss about architecture, model building, the two designs, info providers, master planning, etc. Whatever we would have discussed before lecture 25, we'll discuss all of those things in the lecture 25 in that particular case. Then we'll talk about lecture 26, and in lecture 26 we'll talk about food and beverages. This would also be some sort of practical sort of thing. Then in lecture 27, scheduling of synthetic granulate would be discussed. Lecture 28, the computer assembly would be discussed. In lecture 29, we'll talk about oil industry and how supply chain actually goes on in that. In lecture 30, we'll talk about supply chain management in a pharmaceutical company. Then in lecture 31, integrated campaign planning, scheduling and order confirmation in the specialty chemicals industry would be discussed. And in lecture 32, we'll talk about event-based planning for standard polymer products. So this would be your overall course. If you just have an analysis after discussing all of this course, one thing which would come into your mind in the very first instance, that would be that this course would be a totally practical based course. Of course, supply chain management, when we talk about supply chain management, it actually inculcates all of the chain through which the supplies are made. So until and unless we'll not be having the practical perspective in this course, of course, the basic right of this course would not be fulfilled. So we'll be having, of course, if you just see, we have incorporated more than 5 or 6 different industries, that how supply chain management occurs in those particular industries. So the course would be very interesting, and the main thing is that जितना आप लोग इसमें इंटरेस्ट लोगे उतना you guys would be learning in it, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स कैसे गुजरा. But if you'll not be taking interest in it, then of course what would be the ultimate result? That course would be gone, but there would not be any understanding which was supposed to take in that particular course. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके 4 डिफरेंट हिस्से होंगे. पहले हिस्से में हम लोग ओवरव्यू की बात करेंगे, दूसरे हिस्से में कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, चौथा हिस्सा हमारा एक्चुअल केस स्टडीज का और एक्चुअल एपीएस के ऊपर बेस करेगा. तो आप लोग तैयार हैं? इफ यू आर रेडी तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1. लेक्चर नंबर 1 जैसे मैंने पहले कहा कि विल टॉक अबाउट एन ओवरव्यू. तो इस ओवरव्यू के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? विल टॉक अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. Then the second learning objective is to discuss the in-house vertically integrated structures to more advanced concept of outsourcing in supply chain management. Then the third learning objective is to describe the importance and reasons to employ supply chain management. Then the fourth learning objective is describe a brief history and some of the trends of supply chain management. Then the next learning objective is to know the advances in supply chain management. How these objectives would be fulfilled, the layout, we'll talk about first of all definitions, then in-house vertically integrated structures to more advanced concept of outsourcing in supply chain management. Then we'll talk about importance of supply chain management. Then we'll talk about reasons to employ supply chain management.
Then we'll talk about origin of supply chain management. Then we'll talk about important elements of supply chain management. Then advances in supply chain management. So what is a supply chain? The very basic question. Of course, this is an advances based course, but we'll start from the very scratch so that with the passage of time we'll be moving towards the advances sort of things. A supply chain consists of the flow of products and services from raw materials manufacturers, component and intermediate manufacturers, final product manufacturers, wholesalers and distributors, retailers and end customers. In other words, अगर मैं इंतहाई सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो सप्लाई चेन एक्चुअली है क्या? रॉ मटेरियल जो लोग तैयार कर रहे हैं वहां से लेकर एंड प्रोडक्ट तक, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचती है, ये तमाम जो बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज एक्चुअली सप्लाई चेन. मींस कहां से स्टार्ट होता है? रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर से, वो लोग जो कि रॉ मटेरियल बना रहे हैं. एंड व्हाट इज रॉ मटेरियल? जिससे हम लोग अपनी फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है. जैसे अगर मुझे ये मेज़ बनाना है तो इस मेज़ के लिए मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे? मुझे ऑफ कोर्स लकड़ी चाहिए होगी, तो लकड़ी वुड बी कंसिडर्ड एज द रॉ मटेरियल. फिर द सेकेंड थिंग इन द सप्लाई चेन इज कंपोनेंट एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स. रॉ मटेरियल बन गया, अब उसके अलावा हमें कुछ और जो कंपोनेंट्स चाहिए जो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स तैयार करते हैं, दैट वुड बी द सेकेंड स्टेप. फिर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, जो इस लकड़ी को लेकर फाइनली मुझे टेबल बनाकर दे सकता है, वो ऑफ कोर्स तीसरे नंबर पे आएगा. अब जब प्रोडक्ट बन जाएगी, प्रोडक्ट को ऑफ कोर्स अब सेल करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट कहां जाएगी? होलसेलर्स के पास या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास. फिर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स द प्रोडक्ट वुड गो टू द रिटेलर्स. अब रिटेलर्स आपको पता ही है, फिर रिटेलर्स से कस्टमर्स परचेज करेंगे और वो उसको यूज करेंगे. सो दिस इज एक्चुअली सप्लाई चेन. The whole process of supply chain is connected by transportation and storage activities and integrated through information, planning and integration activities. In other words, हम कह सकते हैं पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बेस करता है. ऑफ कोर्स एक जगह से चीज हम दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर, इवन विद इन द फैक्ट्री एक सिंगल यूनिट के अंदर भी जब हम लोग रॉ मटेरियल को मूव ऑन कराते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. तो सारा का सारा सिस्टम इज बेस्ड अपॉन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. मींस कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनको स्टोर करना जरूरी होता है, तो वो स्टोरेज एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन इन तमाम के लिए हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन एक्टिविटीज की जरूरत होगी. मेनी लार्ज फर्म्स आर मूविंग अवे फ्रॉम इन हाउस वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इन हाउस लोकेशन ऑफ रिसोर्स सिंप्लीफाइज कोऑर्डिनेशन, fosters synergy but increases fixed cost. जब हम लोग इन हाउस लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जो इन हाउस एक ही जगह पर हमारे रिसोर्सेज हों, ये कोऑर्डिनेशन को तो सिंप्लीफाई करता है. ऑफ कोर्स एक ही जगह पे हैं, कोऑर्डिनेट आप एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी वो इंतहाई सिंपल हो जाती है और इजी हो जाती है. सिनर्जी फॉस्टर करती है. फिर लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपको हर चीज ऑफ कोर्स अपने पास प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है और उसके लिए आपको अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं. जैसे स्टोरेज के लिए आप लोगों को गोडाउन्स बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को ऑफ कोर्स अगर तमाम चीजें एक ही जगह पे रखनी है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन हाउस वर्टिकल इंटीग्रेशन इज बिग फार्मा, which tended to execute all stages in house. बिग फार्मा जो है ये इसकी एक बहुत बड़ी वर्टिकल इंटीग्रेशन की एग्जांपल है, जिसमें तमाम काम जो है वो इन हाउस ही किए जाते हैं, तमाम स्टेजेस उसी जगह पर अक्कर हो रही होती हैं. As fixed cost becomes a burden to big pharma, outsourcing becomes attractive. चूंकि फिक्स कॉस्ट एक बर्डन बन जाती है बिग फार्मा पर, तो इसके लिए फिर ऑफ कोर्स अल्टीमेट क्या सोल्यूशन रह जाता है कि आप इसकी आउटसोर्सिंग करते हैं, तो आउटसोर्सिंग जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है. दे आर मूविंग टूवर्ड्स वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन. दैट मीन्स जो चीजें उन्होंने अपने पास इन हाउस की हुई थी, अल्टीमेटली उन लोगों को डिसइंटीग्रेट करना पड़ा.
following the trend in the automotive, IT and aerospace industries. किस चीज को फॉलो किया? There are multiple industries in the market जो कि of course vertical disintegration रखती हैं, तो ultimately they'll have to move towards automotive, IT और aerospace industries. उनको फॉलो करना पड़ा. अगर आप इस डायग्राम को इंतहाई गौर से मुलाहिजा फरमाएं तो आप लोगों को ये ओवरऑल जो मैंने सप्लाई चेन का आप लोगों को प्रोसेस बताया ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा. आप लोग अगर देखिए तो अगर आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्लो देखें, रिसाइकलिंग एंड रिटर्न तो उसके अंदर है ही है. सारा प्रोसेस स्टार्ट कहां से हो रहा है? इट इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर्स. तो ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो हैं ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपना रॉ मटेरियल देते हैं और डायरेक्टली भी वो जो आपका फैक्ट्री एरिया है जहां पर आप लोगों ने चीज़ों को बनाना है या वो लोग जो इसको फाइनली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वहां तक एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है उसको डायरेक्टली भी ये देते हैं या फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी देते हैं. फ्रॉम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भी ये चीज़ें आपकी एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर तक आ जाती हैं. अच्छा, अब ये जो एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है चीज़ों को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करता है, चीज़ों को बना लेता है. बनाने के बाद दीज आर मूवन इनटू होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स. अभी होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं मल्टीपल रिटेलर्स को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स जिनसे एंड कस्टमर्स जो हैं वो मुस्तफीद होते हैं और वो उनसे ले लेते हैं. अगर आप नीचे देखें तो एक बॉक्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एक्टिविटीज गिवन है. ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज एक्टिविटीज जब इंटरमीडिएट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरर तक आती है वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है. फिर जब मैन्युफैक्चरर से रिटेलर की तरफ आएगी या होलसेलर की तरफ आएगी तो वंस अगेन ट्रांसपोर्टेशन वुड बी रिक्वायर्ड और ऑफ कोर्स स्टोरेज एक्टिविटीज भी रिक्वायर्ड होंगी जिन्हें हम लोग ऑफ कोर्स रिटेंशन कॉस्ट बोलते हैं या उनको अपने पास रखने की. तो दिस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड एक्टिविटी इंटीग्रेशन साइट. सो अब तक आई गेस कि आप लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन है क्या एक्चुअली? सॉरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो नहीं लेकिन सप्लाई चेन समझ आ गया होगा कि सप्लाई चेन है क्या, कहां से शुरू होती है और कहां पे जाकर खत्म होती है. इफ वी टॉक अबाउट इन हाउस वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स टू मोर एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So what was old paradigm? Old paradigm was firm gain synergy as a vertically integrated firm encompassing the ownership and coordination of several supply chain activities. वो firms जो कि synergy gain करती थी by vertically integrated means कि तमाम चीजें साथ साथ जिसमें ownership और coordination जो है वो मुख्तलिफ supply chain activities का फर्म्स अपने पास रखती थी. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स एम्फेसाइज शॉर्ट टर्म कंपनी फोकस्ड परफॉर्मेंस. ओल्ड पैराडाइम ये था कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर था उनका बेसिक एम्फेसिस किस चीज पे था? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. शॉर्ट टर्म में हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे शो कर सकते हैं और कंपनी फोकस परफॉर्मेंस कि जो भी काम हो रहा है कंपनी फोकस परफॉर्मेंस उसके अंदर जो है वो हम लोगों को नजर आनी चाहिए. व्हाट इज न्यू पैराडाइम नाउ? Firm in our supply chain focuses activities in its area of specialization and enters into voluntary and trust-based relationships with supplier and customer firms. तो न्यू पैराडाइम ये है कि फर्म्स सप्लाई चेन के अंदर जो सप्लाई चेन एक्टिविटीज हैं उनको फोकस करती हैं अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर कि अगर मैं लकड़ी बनाने के अंदर स्पेशलाइज्ड हूं तो आई शुड ऑफ कोर्स फोकस ऑन लकड़ी मैन्युफैक्चरिंग. मैं जो है वो टेबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए मुझे. तो फर्म्स न्यू पैराडाइम के अंदर आपकी जो स्पेशलाइजेशंस हैं आपको वहां पर ही अपने आप को फिक्स करना चाहिए. एंड एंटर्स इनटू वॉलंटरी एंड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स. और ये फिर ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स के अंदर एंटर होते हैं दूसरों के साथ विद सप्लायर एंड कस्टमर फर्म्स. मीन्स चीजों को आउटसोर्स करते हैं और उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं जिसके थ्रू ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्योंकि आपको उनकी जरूरत है और उनको आपकी जरूरत है. तो आप लोग अपनी चीजों को फिर इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं. बजाय ये कि मैं ये कहूं कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूं और ऑफ कोर्स मुझे परफॉर्मेंस किसी एक भी चीज में नजर ना आए. व्हाई नॉट टू मूव इन अ वे
कि मैं जो लोग जिस एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप करूं और चीजों को लिंक अप करता चला जाऊं. Firms can outsource functions such as payroll, information technology, research and development, and customer care services. अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं इन द सप्लाई चेन जिनको आउटसोर्स किया जा सकता है? हम पेरोल को आउटसोर्स कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली चीजों को आउटसोर्स कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग for the development of the companies or to enhance the development in the economy is research and development. And customer care services. हम जितनी ज़्यादा कस्टमर केयर करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसेज दे सकेंगे, ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा कस्टमर वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स अस. तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से ओवर हियर कि कस्टमर केयर सर्विसेज को भी आउटसोर्स किया जा सकता है, क्योंकि इन द रीसेंट एरा अब कस्टमर केयर जो है वो नॉर्मल वाली बात नहीं रही, इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है. तो अब जरूरी नहीं कि अगर मैं मेज अच्छा बना सकता हूं तो मैं कम्युनिकेशन भी अच्छी कर सकता हूं, कस्टमर्स को भी अच्छा डील कर सकता हूं. तो मुझे ये चीजों को फिर आउटसोर्स करना चाहिए. सो आउटसोर्सिंग स्पेयर्स द फर्म्स द बर्डन ऑफ एक्वायरिंग कॉस्टली इक्विपमेंट, मशीनरी और लाइसेंस राइट्स टू एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. तो ये जो आउटसोर्सिंग है इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा, फर्म्स को बचा लेती है एक एडिशनल कॉस्ट से, जिसमें आप बहुत भारी भरकम किस्म की मशीनरी लेके आएंगे, अपनी फिक्स कॉस्ट एनहांस करते चले जाएंगे, लाइसेंस राइट्स जो हैं इनको आप लोग एक्वायर करेंगे, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आप लोग लेंगे. तो ये ऑफ कोर्स ये चीजें आपकी जो है वो इंतहाई ज्यादा मसला क्रिएट करती हैं. दिस अलाउज देम to concentrate on the core aspects of their business. अभी आउटसोर्सिंग करने से इन लोगों को बहुत बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने कोर एस्पेक्ट के ऊपर, बजाय इसके कि इधर उधर मूव करें. तो जो स्पेशलाइज एरिया है उसके अंदर फोकस करते हैं और वहां पे अपनी प्रोग्रेस को शो करते हैं, विच एनहांस एफिशिएंसी एंड कट ऑपरेशनल कॉस्ट. तो आपकी ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी इनहैंस होती है आउटसोर्सिंग की वजह से, और आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होती हैं. ऑल पार्टिसिपेंट्स इन सप्लाई चेन बेनिफिट. इस प्रोसेस के थ्रू तमाम लोग जो सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको फायदा होता है, उनके अपने बिजनेसेस डेवलप होते हैं और अपने अपने कोर एरिया ही में काम करना पड़ता है. आउटसोर्सिंग इंटेल्स गिविंग आउट नॉन कोर प्रोसेस intensive or capital demanding operations to companies that specialize in providing these activities or services. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी जो नॉन कोर चीजें हैं उनको अपने पास ना रखें, उनको लोगों को दें जो कि प्रोसेस इंटेंसिव हैं, कैपिटल डिमांडिंग हैं ऑपरेशंस, वो आप उन कंपनीज को दें जो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हैं. और ऑफ कोर्स जब वो लोग ज्यादा चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं उनके लिए कॉस्ट भी डिक्रीज कर जाती है, जिसका बेनिफिट आपको भी होता है. Boundaries are dynamic and extend from the firm suppliers to its customers, and customers, that is second tier suppliers and customers. तो बाउंड्रीज जो है वो आपकी डायनामिक हो जाती हैं और ये एक्सटेंड हो जाता है फर्म के सप्लायर से कस्टमर तक और कस्टमर से सप्लायर तक. Supply chains now deal with reverse logistics to handle return products, warranty repairs and recycling. In other words, अब सप्लाई चेन के अंदर हम इसका रिवर्स इम्पैक्ट भी ले रहे हैं और उसमें रिवर्स लॉजिस्टिक्स शामिल होती हैं, जिसके अंदर आप हैंडल करते हो रिटर्न प्रोडक्ट्स को, जो चीजें बेच थी वो वापस आ गई, वारंटी रिपेयर्स को जिनकी आपने वारंटी दी थी बेचते हुए, अब उनके रिपेयर्स करने के लिए भी ऑफ कोर्स लोग आपके पास आएंगे, एंड रिसाइकलिंग. सो अगर हम लोग न्यू पैराडाइम को देखें तो न्यू पैराडाइम जो है हर बंदा सुख में आ जाएगा, हर जो लेवल है सप्लाई चेन का वो सुख में इस तरीके से आ जाएंगे कि अपना अपना कोर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. उन्हें उन चीजों की तरफ मूव नहीं करना जो उनकी स्पेशलाइजेशंस नहीं है. और इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं है, इसका फायदा सप्लाई चेन के अंदर मौजूद हर पार्टनर को है, हर फैक्टर को है, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर दे वुड वर्क और उसके साथ वो लोग कुछ प्रॉपर अर्न भी कर सकेंगे और कॉस्ट रिड्यूस करेंगी, प्रॉफिट्स एनहांस करेंगे, अल्टीमेट आपकी इकोनॉमी भी फ्लरिश करेगी.
अगर हम आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लेना चाहें तो यू कैन नॉट टाई डाउन आउटसोर्सिंग टू एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री बिकॉज इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. तो अगर हम इसको किसी इंडस्ट्री के साथ फिक्स करना चाहें आउटसोर्सिंग को, तो दिस वुड बी इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री जो है वो तमाम कामों के अंदर स्पेशलाइज नहीं होती, तो आपको ऑफ कोर्स लोगों की मदद लेना पड़ती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफरेंट सेक्टर्स पे बेस करता है. हाउएवर इट मोस्टली अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज दैट इनकर ह्यूज कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज. लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादातर उन इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई होता है आपका आउटसोर्सिंग जहां पर आपकी बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है लेबर और कैपिटल रिसोर्सेज की. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू आउटसोर्स द स्टोरेज and warehousing functions of your cargo haulage business than to maintain a network of your own stores and warehouses. बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है. बजाय इसके कि आप अपने वेयर हाउसेस बनाना शुरू करें, आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना शुरू कर दें. अगर आपका बिजनेस जो है वो कार्गो हॉलेज का है, तो बजाय इसके कि ये काम आप खुद करें, व्हाई नॉट टू आउटसोर्स इट. उन लोगों को जो इसके अंदर स्पेशलाइज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट इनकर की हैं, आप उनको दें. ऑफ कोर्स दे वुड वर्क ऑन दैट. When it comes to labor costs, outsourcing helps us to streamline our workforce as contracting firms remain responsible for the welfare of their own employees. जब हम लोग लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो आउटसोर्सिंग हमें हेल्प आउट करती है स्ट्रीमलाइन करने में अपना काम, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके एम्प्लॉयज की वेलफेयर की भी. तो चूंकि चीजें आपने आउटसोर्स कर दी हैं, आपके अपने ऊपर से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बट पीपल आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. सो आउटसोर्सिंग इज आइडियल फॉर इंडस्ट्रीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग दैट रिक्वायर ह्यूज वर्कफोर्स एंड कैपिटल रिसोर्सेज. तो यहां पे अगर मैं ये बात करूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई चेन जो है आउटसोर्सिंग जो है दैट इज बेस्ट. क्यों? क्योंकि इनको बहुत बड़ी वर्क फोर्स चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं. तो अगर आप लोग आउटसोर्स कर देंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट भी जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपके काम आप खुद नहीं कर रहे. आपको जो ज़रूरत के काम है जिसके अंदर आप स्पेशलाइज नहीं है, पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ योर वर्क. तो अब अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ आई तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस. क्यों अहम है? वैसे तो अगर मैं आपसे अब पूछूं तो आप लोग खुद भी मुझे बता सकते हो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या अहमियत बनती है अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो. बट वी कैन हैव इट फ्रॉम हियर कि फर्म्स यूजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैव डिस्कवर्ड वैल्यू एनहांसिंग एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. फर्म्स जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इस्तेमाल करती हैं उनकी वैल्यू भी इनहांस होती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी अटेन करती हैं. The supply chain management, number one, start with key suppliers. जो key suppliers हैं वहां से उनकी supply chain management start होती है. Move on to other suppliers, customers and shippers. इन तक आती है. फिर integrate करती है second tier suppliers and customers को. मतलब आपस में मिलाना शुरू करती है जो आपके second tier suppliers हैं और customers हैं. Second tier refers to the customers and the suppliers. कस्टमर के कस्टमर और सप्लायर के सप्लायर. क्या मतलब इसका? जैसे अगर मैं किसी फर्म से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं और वो फर्म वो रॉ मटेरियल कहीं और से परचेज कर रही है, तो सप्लायर का सप्लायर हो गया. अब कस्टमर जो होलसेलर या जो रिटेलर मुझसे खरीद रहा है वो आगे कस्टमर को बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कस्टमर्स कस्टमर. हु बेनिफिट्स मोस्ट? कौन सबसे ज्यादा फायदा लेता है? फर्म्स विद लार्ज इन्वेंटरीज, वो कंपनियां जिनकी इन्वेंटरीज ज्यादा होती हैं. मेनी आर्ग्यू दैट द फोकस पॉइंट एंड परहैप्स द लिंचपिन ऑफ सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इन्वेंटरीज एंड इन्वेंटरी कंट्रोल. बहुत लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं, बहुत स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं जिन लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम किया, जिनका फोकल पॉइंट ये होता है कि एक्चुअली इन्वेंट्री आपकी एक लिंच पिन का काम करती है और
अगर उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए तो आपका ओवरऑल प्रोसेस बेहतर हो जाता है. सो हाउ डू कंपनीज मैनेज देयर लार्ज इन्वेंटरीज? कैसे मैनेज करती हैं? व्हाट फैक्टर्स ड्राइव इन्वेंट्री कॉस्ट्स? कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इन्वेंटरी कॉस्ट एनहांस होती है? When might it make sense to keep larger inventories? कब हमें बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज रखनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, फूड कंपनीज आर क्विकर टू परस्यू इन्वेंट्री रिडक्शन स्ट्रैटेजीज. आपकी जो फूड कंपनीज हैं वो ज्यादा तेज होती हैं अपनी इन्वेंट्री को परस्यू करने में और रिडक्शन स्ट्रैटेजीज को एम्प्लॉय करने के लिए. क्योंकि आप लोग फूड को ज्यादा अर्सा तक अपने पास नहीं रख सकते, तो अल्टीमेटली आपको इन्वेंट्रीज को मैनेज करना पड़ता है. तो अगर आप लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ जाएं, दिस इज अ फुल फ्लेज कोर्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारी इन्वेंट्री ऑर्डरिंग और इस तरह की काफी चीजें शामिल होती हैं. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द बिजनेस फील्ड. अ कॉमन परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस इज दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट डील्स टू कॉस्ट सेविंग्स. एक कॉमन परसेप्शन है और एक्सपीरियंस ये कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये कॉस्ट सेविंग को लीड करती है, लार्जली थ्रू रिडक्शंस इन इन्वेंटरी. ज्यादातर जो कॉस्ट सेविंग होती है वो इसलिए क्योंकि हमारी इन्वेंटरी रिड्यूस करती है. इन्वेंटरी कॉस्ट हैव फॉलन बाय अबाउट 60% सिंस 1982. 1982 से लेकर इन्वेंटरी कॉस्ट में 60% का डिक्रीज आया है. while transportation costs have fallen by 20%, जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 20% डिक्रीज की है. ये विल्सन साहब की रिसर्च थी इन 2004. Such cost savings have led many to pursue inventory reduction strategies in the supply chain management. आपको ये बात अब बहुत अच्छी तरह पता है कि जब हम लोग एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में मूव करते हैं तो मार्केट में लोग एक बंदे को जब देखते हैं कि उसको ये फायदा मिल रहा है तो तमाम लोग वो स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फायदा वो भी अटेन कर सके. तो हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री रिडक्शन स्ट्रैटेजीज जो हैं सप्लाई चेन की, ये कॉस्ट सेविंग करती हैं, तो लोग फिर इसको परस्यू करते हैं. टू डेवलप द मोस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिकल स्ट्रैटेजी, अ फर्म मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड. एक बहुत ही इफेक्टिव लॉजिस्टिकल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक फर्म को यह लाजमी समझना चाहिए कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है एंड सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज क्या है. तो ये जो इफेक्टिव लॉजिस्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं वो ऐसे ही नहीं बनती, उनके बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी अटेन करनी पड़ती है, जिसकी बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स आप लोग अपनी सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज को डिटरमिन करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि क्या चाहिए और क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट यू फाइनलाइज कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड. सेकेंड थिंग, आफ्टर इन्वेंटरी, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स. So supply chain management helps companies to efficiently manage the number of suppliers. Supply chain management जो है कंपनीज को हेल्प आउट करती है efficiently मैनेज करने के लिए नंबर ऑफ सप्लायर्स को. A firm can reduce large number of suppliers and can focus more on the operational level integration so that apart from purchasing cost, inventory, administrative efforts can also be reduced. तो एक फर्म जो है ये लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स को रिड्यूस कर सकती है और फोकस कर सकती है ज्यादातर ऑपरेशनल लेवल इंटीग्रेशन के ऊपर, ताकि परचेजिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स जो हैं इनको रिड्यूस किया जा सके. तो हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स वाला प्रॉब्लम जो है थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एक अप्रोप्रिएट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग अपने लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स को भी डिक्रीज कर सकते हैं. जिसका तरीकाकार क्या है कि हम लोग अपने नंबर ऑफ सप्लायर्स को डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम लोग फोकस करें ज़्यादातर अपने ऑपरेशनल लेवल इंटीग्रेशन के ऊपर और हमारी परचेजिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री की तरफ, तो अल्टीमेटली हम लोग अपने नंबर ऑफ सप्लायर्स को डिक्रीज कर सकते हैं. वैसे नंबर ऑफ सप्लायर्स अगर ज़्यादा हो तो इनके साथ मसला क्या होता है? सबसे बड़ा मसला आपका कॉस्ट डिफरेंस का होता है. फिर कॉस्ट डिफरेंस के अलावा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी का होता है. फिर बाज़-औक़ात आप लोग जब ज़्यादा लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपको हो सकता है किसी एक से भी प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट्स ना मिले. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्मली आपका जो ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स के होने से आपके पास ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो चूँकि एनहांस करता है सप्लायर्स का, तो वो पोर्टफोलियो एनहांस करने की वजह से आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं.
Then the third element is complex products. In recent years, effective supply chain management has emerged as a significant competitive advantage for companies in very different industries. अभी recent years के अंदर effective supply chain management जो है ये emerge हुई है, जिससे एक significant competitive advantage हासिल हुआ है कंपनीज को, एक जो कि एक different industries के अंदर काम करती हैं. For example, Chopra and Mendel in 2000. For large multinational companies that manufacture complex products such as automobiles, machines or personal computers, supply chains are highly complex socio-economic systems. तो इंडस्ट्रीज जो कि इंतहाई कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज है, उनका ओवरऑल सप्लाई चेन भी जो है वो भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों? क्योंकि आप एक हाईली कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मूव करते हैं. मतलब रॉ मटेरियल किसी और कल्चर से आना है, फिर आपने प्रोडक्ट कहीं और बनानी है, कस्टमर कोई और है जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो ओवरऑल सप्लाई चेन जो है वो आपकी डाइवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन में मूव कर रही होती है. Similar to the supply chains in manufacturing and other industries, the healthcare delivery system is so large and complex that it has become impossible for any individual or even any single organization to understand all of the details of its operations. तो सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग की तरह और दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी जो है ये भी बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है. That it has become impossible for any individual, इतना कॉम्प्लेक्स कि अब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है किसी इंडिविजुअल के लिए या इवन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस, कि वो समझ सकें इसके ऑपरेशंस की तमाम डिटेल्स को. तो दिस हैज बिकम दैट मच कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट कि एक इंडिविजुअल तो क्या, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. So like industrial supply chains, the healthcare supply chain consists of multiple independent agents. तो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन की तरह आपकी जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन है ये भी मल्टीपल इंडिपेंडेंट एजेंट्स पे बेस कर रही होती है, सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एम्प्लॉइज एंड रेगुलेटरी एजेंसीज. तो हेल्थ केयर के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज. अगर आप लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर देखें या अब तो इवन के जो आपकी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दें ताकि ऑफ कोर्स वो जो बहुत महंगे महंगे अखराजात हैं उन लोगों के मैनेज हो सके. तो हेल्थ केयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फिर हॉस्पिटल्स इटसेल्फ इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस होल ऑफ द सप्लाई चेन. देन डॉक्टर्स, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स जो अस्पताल बनाते हैं या डॉक्टर्स को हायर करते हैं, एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, कौन रेगुलेट करता है इनको, whose economic structures and hence objectives differ and in many cases conflict with each other. जिसमें आपके ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स तो शामिल हैं ही, तो जिसकी वजह से जो कि डिफर करते हैं मैनी केसेस के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज इंटेंस कॉम्पिटिशन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैनेजर्स दीज डेज रिकॉग्नाइज that getting products to customers faster than the competition will improve a company's competitive position. आजकल मैनेजर्स इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कस्टमर्स को जब हम लोग प्रोडक्ट देते हैं ये जितनी फास्टर होगी उतना ही कंपटीशन इंप्रूव होगा और आपकी कंपेटिटिव पोजीशन होगी मार्केट के अंदर. और अगर चीजें आपकी स्लो होती जाएंगी, अल्टीमेटली कस्टमर इंतजार नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, उसको तो ऑफ कोर्स अपनी नीड को फुलफिल करना है. तो इफ योर दिस सिस्टम इज नॉट फास्टर देन ऑफ कोर्स द अदर पीपल वुड गेट द कंपैटिटिव एडवांटेज ऑन यू. तो ऑफ कोर्स आपको इन चीजों को इन टाइम मैनेज करना होता है. टू रिमेन कंपैटिटिव, कंपनीज मस्ट सीक न्यू solutions to important supply chain management issues such as model analysis, supply chain management, load planning, route planning and distribution network design.
तो कंपेटिटिव रहने के लिए कंपनीज को बहुत सी सप्लाई चेन के सॉल्यूशंस तलाश करने पड़ते हैं, जिसके अंदर क्या है, उनका मॉडल एनालिसिस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लोड प्लानिंग है, राउट प्लानिंग है एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन प्रॉपर करना पड़ता है. So why is it so important for companies to get products to their customers quickly? क्यों ये बहुत जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को as soon as possible पहुंचाएं? Faster product availability is key to increasing sales. Yes, of course. आप जितना जल्दी बेचेंगे उतना आपकी सेल इंक्रीज होगी. Says R. Michael Donovan of Natick Mass, a management consultant specializing in manufacturing and information systems. ये कौन सा आप कहते हैं? ये R. Michael Donovan जो कि Natick के हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. वो कहते हैं कि फास्टर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज की टू इंक्रीजिंग सेल्स. There's a substantial profit advantage for the extra time that you are in the market and your competitor is not. तो जब आपका कंपेटिटर मार्केट में नहीं है और आप मार्केट में हैं, तो आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं. He says if you can be there first, you are likely to get more orders and more market share. तो साफ फरमाते हैं कि अगर आप मार्केट में पहले हैं तो आप ज्यादा शेयर अटेन कर सकते हैं और ज्यादा वहां पर मार्केट में आप लोग ऑर्डर्स ले सकते हैं. द एबिलिटी टू डिलीवर अ प्रोडक्ट फास्टर ऑल्सो कैन मेक और ब्रेक अ सेल. तो आपकी जो फास्टर अवेलेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी है, ये अगर ना की जाए तो इससे आपकी प्रोडक्ट सेल इंक्रीज भी हो सकता है और सेल आपकी खत्म भी हो सकती है, जिसके चांसेस ज्यादा है. If two alternative products appear to be equal and one is immediately available and the other will be available in a week, which would you choose? Of course, मैं तो उसी की तरफ जाऊंगा. अगर दो alternative products हैं और मुझे मेरी need satisfy हो रही है at the spot मुझे चीज लेने से, तो I'll go for that the spot. Why should I wait for 1 week? Which would you choose? So clearly, supply chain management has an important role to play in moving goods more quickly to their destination. तो supply chain management जो है एक important role रखती है चीजों को as soon as possible अपने destination तक पहुंचाने के लिए. तो just look, कितना important aspect है supply chain management का, जिसकी वजह से you can get the competitive position in the market. तो क्यों लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एम्प्लॉय करेंगे अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जो कि जस्टिफाई करती हैं कि क्यों सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करना चाहिए विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कॉस्ट सेविंग्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज आर रीजंस टू एम्प्लॉय सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो कॉस्ट सेविंग और बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को होना चाहिए. Reduced bullwhip effect, the magnified reduction of safety stock caused based on coordinated planning and sharing of information. एक बहुत ही significant reduction of safety stock जो है उसकी cost ये बेस करती है coordinated planning और sharing of information के ऊपर. मतलब मुझे safety stock क्यों नहीं रखना चाहिए? किस वक्त मैं safety stock नहीं रख पाऊंगा? जब मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और मुझे उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एतबार भी होगा और मेरी जो है वो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग भी बीच में शामिल होगी. फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज रिड्यूस द बुलविप इफेक्ट एंड लीड टू बेटर कस्टमर सर्विसेज. तो आपका फोरकास्टिंग और जो रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज हैं ये बुलविप इफेक्ट को रिड्यूस करती हैं और लीड करती हैं बेटर कस्टमर सर्विसेज की तरफ. लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, इंप्रूव्ड क्वालिटी, reduce cycle time, better production methods and other benefits. तो आपकी जो प्रॉपर फोरकास्टिंग और रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज हैं इससे आपका बुलविप इफेक्ट जो है ये तो रिड्यूस होता ही है, जो कि कस्टमर सर्विसेज को भी इनहेंस करता है
लोकल इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, लोअर करता है आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को, और आपकी क्वालिटी को एनहांस करता है, रिड्यूस करता है साइकिल टाइम को, एंड बेटर प्रोडक्शन मेथड्स एंड अदर बेनिफिट्स, और भी कई इसके ब्ला ब्ला बेनिफिट्स हैं. The next is collaborative planning. This is one of the largest benefit from long-term supply chain collaboration. So, collaborative planning जो है ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिसके थ्रू आपकी long-term supply chain collaboration increase होती है, and on that consistently delights operationally oriented managers are the cost savings that result from routinized producers over the life of the relationship. So, when buyers and suppliers begin a relationship, their interactions often are fraught with inefficiencies and expensive organizational idiosyncrasies, adding to the cost of doing business in year 1. In year 2, however, procedures typically become more streamlined. The longer the relationship, the more indirect costs, operational and otherwise, are reduced. Ultimately, जितना लंबा आपका रिलेशनशिप होगा उतनी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑपरेशनल या अदरवाइज आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होंगी. These cost savings are shared by both buyers and sellers. और ऑफ कोर्स ये फायदा जो है बायर और सेलर दोनों को होता है, increasing the benefits to both. They can also be passed on to customers in the form of lower prices, thereby increasing the supply chain's position in the competitive landscape. तो ये पास हो सकता है आपके कस्टमर्स को जब हम लोग लोअर प्राइस के ऊपर चीज़ें देते हैं, जिसके थ्रू आपकी सप्लाई चेन पोजीशन जो है वो मजीद कंपेटिटिव लैंडस्केप के अंदर दाखिल हो जाती है. इट बूस्ट कस्टमर सर्विस. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स कस्टमर सर्विस by making sure the right product assortment and quantity are delivered in a timely fashion. तो मैं यहाँ पे क्रेडिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दे सकता हूँ कि कस्टमर सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट करती है, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को दी जा रही है that entails all of the characteristics which are supposed to be in that particular product. So additionally, those products must be available in the location that customers expect. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल हैं जहां पे कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं. Customers should also receive quality after sale customer support, of course. So the next segment is improves bottom line. So supply chain management has a tremendous impact on the bottom line. Supply chain management का अपनी bottom line के ऊपर एक बहुत बड़ा impact है. और bottom line पता ही आपको क्या होता है? Bottom line is profit. Firms value supply chain managers because they decrease the use of large fixed assets such as plants, warehouses and transportation vehicles in the supply chain. Also, cash flow is increased because if delivery of the product can be expedited, profits will also be received quickly. So हम ये कह सकते हैं कि आपका कैश फ्लो भी इंक्रीज करता है जब आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी तेज होती है और प्रॉफिट्स जो है वो आपके जल्दी जल्दी होना शुरू होते हैं. So the very important thing, जब भी हम लोग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें उसका ओरिजिन समझ आ जाए, उसकी हिस्ट्री पता हो, तो हम उसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स लाने के काबिल भी हो जाते हैं. So before the 1950s, logistics was thought of in military terms. It had to do with procurement, maintenance, and transportation of military facilities, material, and personnel. Although few authors before this time began talking about trading one cost for another, such as transportation costs with inventory costs, and discuss the benefits to the firm of getting the right goods to the right place at the right time. The organization within the typical firm around the activities currently associated with logistics was fragmented. This fragmentation led to conflicts among those responsible for logistics activities
with the result that, from the firm's perspective, costs and customer service were sub-optimized. The reasons for this fragmentation were said to be, तो ये जो fragmentation थी जिसकी वजह से आपके supply chain पे effect हुआ या overall आपके processes पे impact हुआ, ये fragmentation की reasons were this: a lack of understanding of key cost trade-offs. लोगों को पता ही नहीं था कि cost trade-offs जो हैं वो हैं क्या, कैसे originate होते हैं. The inertia of traditions and conventions. Traditions और conventions जो थी उनका जो एक प्रेशर था जो वो रुके हुए थे, that was one of the cause. Areas other than logistics were thought to be more important. Logistics के अलावा जो areas थे उनको ज़्यादा important समझा जा रहा था. The organization may have been in an evolutionary state. तो organization जो थी इनको ज़्यादा एक evolutionary stage के अंदर consider किया जा रहा था. तो 1950s से लेकर 60s तक क्या हुआ? US manufacturers focused on mass production techniques as their principal cost reduction and productivity improvement strategies. Paul Converse in 1954, a noted marketing professor, said in 1954 that business had been paying a great deal more attention to buying and selling than to physical distribution. So, in retrospect, research that would play a pivotal role in laying the foundations for physical distribution was a study by Levy et al. In 1956. This study for the airline industry asked how it might better compete in hauling freight when its costs were significantly higher than other forms of transportation. The study pointed out that it is necessary to view shipping from a total cost perspective and not from just a transportation cost one. That is, although air freight cost may be high, air freight's faster and more reliable service can lead to lower inventory carrying costs on both ends of the shipment. This was an expression of the total cost concept and was to underpin much of writing and teaching to follow in the 1960s. So, of course, different research के मैंने कुछ यहाँ पर references देने की कोशिश की जिससे आप लोगों को थोड़ी सी understanding हो कि 50 से 60 तक आपकी overall cost कैसे estimate होती थी और एक overall pattern चल क्या रहा था. From 1960s to 70s, introduction of new computer technology lead to development of materials requirements planning (MRP) and manufacturing resource planning (MRP2) to coordinate inventory management and improve internal communication. तो यहाँ से थोड़ा सा internal communication के बारे में थोड़ी सी बात होना शुरू हो गई थी. The study and practice of physical distribution and logistics also emerged in the 1960s and 70s. Logistics costs were high. On a national level, it was estimated that logistics costs in the US accounted for 15% of the gross national product. This was a study by Heskett et al. In 1973. Though, similarly, physical distribution costs of other nations were found to be high as well. Physical distribution with its outbound orientation was first to emerge since it represents about 2/3 of logistic concepts, costs, and it was considered a component of the marketing mix, product, place, or physical distribution, promotion and price of essential elements. तो marketing mix जिसको हम 5 P's कहते हैं इनके ऊपर भी बात होना शुरू हुई. 1980 और 90 की दहाई में फिर क्या हुआ? Intense global competition led US manufacturers to adopt supply chain management along with just-in-time, total quality management and business process re-engineering practices. तो एक intense global competition तो US manufacturers ने शुरू किया supply chain management को adopt करते हुए, जिसके साथ supply chain management के साथ इन्होंने just-in-time वाला concept भी लाया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी परफॉर्म करना शुरू किया और बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग पे भी बात करनी शुरू की. In the 1980s, companies discovered new manufacturing technologies and strategies that allowed them
to reduce costs and better compete in different markets. Strategies such as just-in-time manufacturing, Kanban, lean manufacturing, total quality management, and others became very popular, and vast amounts of resources were invested in implementing these strategies. In the last few years, however, it has become clear that many companies have reduced manufacturing costs as much as is practically possible. Many of these companies are discovering that effective supply chain management is the next step they need to take in order to increase profit and market share. तो मैं यहाँ पे conclude कर सकता हूँ कि 1980 और 90 की दहाई में लोगों को ये realize होना शुरू हो गया कि अगर हम लोग मार्केट में स्टे करना चाहते हैं, मार्केट में कंपेटिटिव रहना चाहते हैं, मार्केट से प्रॉफिट और अपना मार्केट शेयर उठाना चाहते हैं, तो हमें इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर सोल्यूशन. सो 2000 एंड बियॉन्ड, 2000 से लेकर आज तक, given 40 years of background with a broad concept of for logistics, what exactly is supply chain management to its proponents? There has been an attempt to distinguish logistics from supply chain management, declaring logistics to be a subset of supply chain management. Recently, the Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP, which is the premier organization of supply chain practitioners, researchers and academics, has defined supply chain management as. तो अब आज के दौर के अंदर supply chain management को कैसे define किया गया? Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third-party service providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies. Today's supply chain management includes services such as, आज की supply chain management कौन-कौन सी services रखती है? Operational analysis and design materials handling. Operations को कैसे analyze किया जाता है और material designing को कैसे handle किया जाता है. Then distribution strategy is one of the aspect of supply chain. Operational improvements, distribution management, then computer systems, warehouse design project management, operational commissioning, computer simulation, and technical seminars. In future, industrial buyers will rely more on third-party service providers, 3PLs, to improve purchasing and supply management. Wholesalers, retailers will focus on transportation and logistics more and refer to these as quick response, service response logistics, and integrated logistics. The trend toward increased globalization, free trade, and outsourcing all contribute to a continued and growing interest in logistics, or SCM. According to a McKinsey & Company study, by the year 2020, 80% of the goods in the world will be manufactured in a country different from where they are consumed compared with 20% now. तो ये it was a forecast कि अभी जो कि 20% इस्तेमाल हो रही है 2020 तक की 80% तक पहुंच जाएगी. There will be a tremendous shift in the movement and consumption of goods, all of which will require ever better management of the associated supply chain process. There will be a shift in strategy. In the past, the focus of logistics, SCM, has been on efficiency. As Peter Drucker in 1962 put it, physical distribution is the last frontier of cost economies. The contemporary view is that supply chain management is a new frontier for demand generation, a competitive weapon. Both views will be important
but the new emphasis will be on designing and operating the supply chain to enhance the revenues of the firm in such a way as to maximize contribution to profit. This view replaces the often used strategic objective of minimizing supply chain costs, subject to meeting given customer service requirements, and it will elevate SCM in the eyes of top management. A new objective will emerge to capture revenue enhancement effects. So, collaboration and coordination will be the keys to achieving the benefits of supply chain management. When both parties in a supply chain relationship win equally due to their cooperative actions in the supply channel, the benefits are likely to be realized and the relationship remains intact. तो जब दोनों लोग आपस में फायदा ले रहे होते हैं तो रिलेशनशिप भी इंटैक्ट रहता है. अगर एक की कॉस्ट पर दूसरा फायदा ले रहा हो तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते. In too many cases, this does not occur and there is a dilemma that must be resolved. तो कई केसेस के अंदर ये नहीं भी होता, एक डायलेमा है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए. तो यहां से अब अगर मैं बात करना शुरू करूं, हिस्टोरिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट इवेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कैसे कैसे हुए. तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1950s, तो 1950s के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज डिस्कस्ड, दैट वाज ट्रेडिशनल मैस मैन्युफैक्चरिंग. तो 1950s के अंदर मैस मैन्युफैक्चरिंग वाज देयर. देन अगले एरा के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंटेनमेंट के ऊपर बात स्टार्ट हुई. From inventory management and cost containment, the next step on which the discussions were started, just in time, total quality management, BRP, BPR, supplier and customer alliances, इन पे बात शुरू हुई. Then supply chain relationship formation and extension, इन पे बात हुई. Then increased supply chain capabilities पे बात हुई. तो अगर आप लोग देखें तो आज के दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर, ताकि बेनिफिट्स जो हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट्स रहें और रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म इंटैक्ट रहें. तो अल्टीमेटली जब आप लोग अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस करोगे, आप लोग अपनी वर्टिकली चीज़ों को डिसइंटीग्रेट करोगे, तो अल्टीमेट आपको ज़रूरत पड़ेगी लोगों की. और किन लोगों की? जो आपकी तरह के मार्केट के अंदर आपके साथ कंपैटिबल हैं और ऑफ कोर्स जिनकी आपको ज़रूरत है. तो बेनिफिट्स, जब दोनों पार्टीज को बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपके इंटैक्ट भी रहते हैं. तो आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं. लेकिन ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि आज एक्चुअली हम लोगों ने किया क्या. हम लोग, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा कोर्स 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा. सबसे पहला हिस्सा हमने बात की थी कि हम लोग ओवरव्यू पे बात करेंगे. तो हम लोग पहले हिस्से को शुरू किया, हमने ओवरव्यू पे बात शुरू की. सप्लाई चेन की हम लोगों ने तारीफ पढ़ी कि हाउ टू डिफाइन सप्लाई चेन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर शामिल होते हैं. फिर हम लोगों ने बात की कि सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट क्यों है, मल्टीपल फैक्टर्स देखे. फिर हम लोगों ने रीजंस आइडेंटिफाई की कि किसी भी फर्म को या इंडस्ट्री को क्यों एम्प्लॉय करनी चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस को. इसके बाद इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए या इसकी अहमियत को जानने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये काम शुरू कहाँ से हुआ. तो हमने 1950 से बात शुरू की, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया और आज तक उसको देखा कि हम लोग किस लेवल पे हैं एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद से कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और इस लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.